antiplatelet drugs. So it is also called anti-aggregant. So antiplatelet drugs also can be called as anti-aggregant. Member of a class of pharmaceuticals that decrease platelet aggregation and inhibit thrombus formation. तो प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब ये है कि जो प्लेटलेट्स जब एक जगह आके जब क्लस्टर फॉर्म होके वहाँ पे ब्लड क्लॉट जब जनरेट होता है उसको बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन. एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन इज़ नथिंग बट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन. तो एंटी एग्रीगेंट ड्रग्स और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो है वो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं. दे आर इफेक्टिव इन आर्टेरियल सर्कुलेशन. तो एंटी एग्रीगेंट और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आर यूज्ड इन आर्टेरियल सर्कुलेशन. Here is the mechanism of action how the antiplatelet drugs works. It have the ability to suppress the production of prostaglandins and thromboxane which is due to its irreversible inactivation of the cyclooxygenase enzymes. Cyclooxygenase is required for prostaglandins and thromboxane synthesis. तो इस फर्स्ट पॉइंट में ये है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस के लिए साइक्लोऑक्सीजेनस इम्पॉर्टेंट है. और ये प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन क्या करता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन जो एग्रीगेशन जो है वो एग्रीगेशन होने में प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन के लिए हेल्पफुल है. तो अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन को के सिंथेसिस को रिड्यूस करना है तो साइक्लोऑक्सीजेनस के वर्किंग को वो रिड्यूस भी करना रहता है. तो ये जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्या करता है, साइक्लोऑक्सीजेनस ड्रग्स के एक्टिवेशन को इनएक्टिवेट करता है. अगर साइक्लोऑक्सीजेनस का वर्किंग जो है वो इनएक्टिवेट हो गया तो ऑटोमेटिकली प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन के भी सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है. अगर ये दोनों का सिंथेसिस रिड्यूस हो गया तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता है. दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग. Next point is antiplatelet therapy with one or more of these drugs decrease the ability of blood clot to form by interfering with platelet activation process in primary hemostasis. तो ये जो antiplatelet therapy में जितने भी drugs है ये सारे क्या है, blood clot का जो ability है उसको reduce कर देता है और ये it helps in proper blood flow. Antiplatelet drugs can reversibly or irreversibly inhibit process involved in platelet activation. तो जो antiplatelet drugs है वो reversibly और irreversibly क्या करते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेशंस को भी reduce करता है. क्योंकि अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा एक्टिवेट हो गए तो वो ब्लड क्लॉट्स ज़्यादा फॉर्म करते हैं. तो इसको reduce करने के लिए antiplatelet drugs यूज़ होते हैं. Here are some classifications of antiplatelet drugs. First is irreversible cyclooxygenase inhibitors. Under that is aspirin triflucil, which is also known as Discrene. Second is adenosine diphosphate receptor inhibitors. Under that is clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, ticlopidine. Third is protease activated receptor first antagonist. Under that is vorapaxar. Fourth is glycoprotein 2B or third A inhibitor. Under that is abciximab and tirofiban. Fifth is adenosine reuptake inhibitor. Under that is dipyridamole. Sixth is thromboxane inhibitors. Under that is thromboxane synthase inhibitors, thromboxane receptor antagonist and teratroban. So these 6 are the classifications which comes under antiplatelet drugs. Next, indications. For what purpose we have to give the antiplatelet drugs? First is primary prevention of cardiovascular disease. तो primary first indication है to prevent primary prevention of cardiovascular disease. Second is to secondary prevention of cardiovascular disease. Acute ischemic in events. Ischemic मतलब reduced blood flow. तो अगर acute blood flow reduce blood flow हो रहा है ड्यू टू blood clot फॉर्म, blood clot के कारण हो रहा है तो उस blood clot को reduce करने के लिए antiplatelet drugs यूज़ होता है. नेक्स्ट इज myocardial ischemia. सेम ischemia मीन्स reduced blood flow. तो myocardial में भी अगर ischemic होता है तो
एंटीप्लेटलेट ड्रग्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज सेरेब्रल इस्केमिया, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन इज नथिंग बट इरेगुलर ऑफन रैपिड हार्ट बीट रेट दैट कॉमनली कॉज पुअर ब्लड फ्लो। तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, ज़्यादा हार्ट बीट रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। रीज़न है ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो, और रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो क्यों हो रहा है, ड्यू टू ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। तो उस क्लॉट को अगर हम रिड्यूस कर देते हैं तो ब्लड फ्लो भी इजीली हो सकता है, तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज एंजाइना, चेस्ट पेन, नेक्स्ट पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। दीज आर द इंडिकेशन फॉर व्हाट पर्पस फॉर विच वी हैव टू गिव एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। नेक्स्ट इज नेक्स्ट यूजेस आफ्टर एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट। तो ये दो है कुछ प्रोसीजर्स हैं, ये दोनों प्रोसीजर्स करने के बाद भी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दिए जाते हैं। तो एंजियोप्लास्टी क्या है, इट इज़ अ प्रोसीजर टू रिस्टोर ब्लड फ्लो थ्रू दी आर्टरी। तो एंजियोप्लास्टी इज़ अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है जिसमें कि ब्लड फ्लो को फिर से रिस्टोर करने के लिए आर्टरीज में ये प्रोसीजर यूज़ होता है। तो उस टाइम पे ब्लड क्लॉट होने का चांसेस रहता है, तो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स अगर वो पर्सन को प्रेस्क्राइब कर दिया जाए जिसको एंजियोप्लास्टी हुआ है तो वो दे विल बी फाइन। नेक्स्ट स्टेंट प्लेसमेंट। स्टेंट प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच एक स्टेंट रहता है जो कि आर्टरीज में रखा जाता है ताकि वो दोबारा क्लोज ना हो। तो ये स्टेंट प्लेसमेंट प्रोसीजर भी जब करते हैं तो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दिया जाता है ताकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स ना हो। आफ्टर हार्ट बाईपास एंड वॉल्व रिप्लेसमेंट, तो बाईपास सर्जरी हो रही है या फिर वॉल्व रिप्लेसमेंट हो रही है तो उस टाइम पे भी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन पीपल विथ आर्टेरियल फिब्रिलेशन। तो इससे पहले जो हमने देखा था आर्टेरियल फिब्रिलेशन जिसमें कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि रिड्यूस ब्लड फ्लो के कारण। तो अगर ब्लड फ्लो को रिड्यूस हो रहा है, किस चीज़ के लिए कारण हो रहा है, ब्लड क्लॉट के कारण हो रहा है, तो हम अगर एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लड क्लॉट्स भी हट जाएंगे और आर्टेरियल फिब्रिलेशन भी नहीं होंगे। तो दीज आर द यूजेस ऑफ एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। नेक्स्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हु आर हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, दैट इज़ एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो जिसको हाई रिस्क ब्लीडिंग होने के चांसेस रहता है सच एज एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो रहे हैं तो वैसे पर्सनस को भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, उनको ये ड्रग नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट इज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन है तो वो पर्सनस को भी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स नहीं देते। हाइपरसेंसिटिविटी एंड एलर्जी, अगर एलर्जिक है। नेक्स्ट इज अस्थमा। सो दीज आर द पीपल्स हु आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। नेक्स्ट, साइड इफेक्ट्स आर नोजिया, वॉमिटिंग, अपसेट, स्टमक पेन, डायरिया, रैशेस, itching, swelling of face and hands, fever, chill and sore throat. These are the side effects. Thank you.